Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 12th of June 2020 Friday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is who we listen to and the advice we take from others determines our future steps. So always try to listen positive. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Clicks Capital eyes majority stake in Lakshmi Vilas Bank. Because of the subdued economic activities and pandemic caused economic lockdown, capital staffed Lakshmi Vilas Bank is looking forward for its majority stake selling to Aeon Capital backed Clicks Capital. अगर कल आपको याद हो तो हमने एऑन कैपिटल के बारे में कोई न्यूज़ पढ़ी थी, तो आप मुझे बताएंगे कि एऑन कैपिटल जो है ये किस किस का जॉइंट वेंचर है, कौन सी दो कंपनीज मिल करके एऑन कैपिटल को फॉर्म करती हैं. तो फिलहाल की न्यूज़ में ये है कि लक्ष्मी विलास बैंक जो है उसमें लिक्विडिटी क्रंच, कैपिटल क्रंच की वजह से, कैपिटल स्टाफ बैंक है जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू ऑपरेट प्रॉपरली, दे आर नॉट एबल टू गो फॉर देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड normal business activities, and because of that Lakshmi Vilas Bank is going to sell approximately 51% of its stake to Clicks Capital, and this deal is at their advanced stage of finalization. Highly placed sources says the private equity player through its non-banking financial arm, that is Clicks Capital. So it is actually the investment of Aeon Capital but via Clicks Capital. And what is the business of Clicks Capital? Clicks Capital is actually digital lending NBFCs that has a focus on retail, consumers, small businesses and equipment loans, and has assets under management of roughly 5,000 crores. Aeon Capital, along with the former G Capital India CEO Pramod Bhasin and former DE Shaw head Anil Chawla, acquired the G Capital's commercial lending and leasing business in 2016 and renamed it as a Clicks Capital. So Clicks Capital is going to backed by Aeon Capital for investing 51% stake in Lakshmi Vilas Bank. 51% stake means now Clicks Capital or Aeon Capital is going to have the majority stake in LVB. Majority stake means now they will have the decision making authority or power. And it is expected that letter of intent will be sent to LVB in next week. And what will be the amount of fund that Clicks Capital will infuse into LVB? That is rupees 1,000 crores to 1,500 crore as a equity. And if RBI allows another investor, then Clicks may enter or may ask another investor to invest into LVB, and that will increase the stake up to 70%. So they are waiting for RBI clearance. After that, we can see one more major shareholder in LVB. Two other companies have also shown interest in taking the stake in the bank. So if RBI allows, any one of them could be the next investor in Lakshmi Vilas Bank. Now look at into the article number 2 given on page number 1. SC slams center on AGR demand against PSUs. We have already discussed the Supreme Court verdict on AGR dues on telecommunication companies, and this issue raises further when Department of Telecommunication has asked the non-telecom companies just like Oil India, GAIL and Power Grid Corporation to pay their AGR dues. They all were the non-telecom public sector undertaking, and Department of Telecommunication is asking them to pay their AGR dues from the time of spectrum allocated to them. So on this move of center government, Supreme Court has asked the government to reconsider its demand from public sector undertakings and asked them to withdraw this, and said this is totally impermissible to ask for AGR dues from non-telecom communication companies. And what is the amount that government is asking from those non-telecom companies? It is approximately 2.7 trillion as a due on adjusted gross revenue, and we all have discussed the concept of adjusted gross revenue. And these PSUs had been asked to pay license fee and the spectrum usage charges dues not only on their telecom related revenues but on the total revenues following the October 24th decision of Supreme Court. But Supreme Court has clearly said this is
wholly and totally impermissible, and government of India has misinterpreted the verdict given by Supreme Court on October 24, 2019. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ऑर्डर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अपना ये डिमांड वापस लीजिए, और जो वर्डिक्ट दिया गया था वो स्पेशली टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए ही दिया गया था, आप उसे नॉन टेलीकॉम कंपनीज़ पर यूज़ नहीं कर सकते, पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये ऑयल इंडिया, गेल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये तो सारे नॉन टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, इनको स्पेक्ट्रम क्यों इशू हुआ और क्या इन्होंने इस स्पेक्ट्रम का कमर्शियल यूज़ किया, टेलीकॉम रिलेटेड यूज़ किया और टेलीकॉम रिलेटेड रेवेन्यू जनरेट किया? एक्चुअली जो बड़ी बड़ी PSUs होती है इनको भी स्पेक्ट्रम यूज़ एलोकेट किए जाते हैं फॉर देयर पर्सनल यूज़, फॉर देयर बिजनेस यूज़। तो उसी स्पेक्ट्रम एलोकेशन की फ़ीस भी इनसे चार्ज करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने उनको लेटर इशू किया था, और ये कहा था कि इस स्पेक्ट्रम से उन्होंने जो भी टेलीकॉम रिलेटेड रेवेन्यू जनरेट किया है उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम एलोकेशन को यूज़ करते हुए उस पर उनका भी ड्यूज़ बनता है, और उन्हें भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को जस्ट लाइक प्राइवेट फर्म्स ड्यू क्लियर करना चाहिए। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी हेड बाय जस्टिस मिश्रा, उसने क्लियरली इस चीज़ पर गवर्नमेंट को फटकार लगाई और कहा है कि गवर्नमेंट ने का जो ये डिसीजन है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड गवर्नमेंट शुड रिकंसीडर विदड्रॉइंग इट्स डिमांड फ्रॉम ऑल दोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और इसी वर्चुअल हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं, टेलीकॉम कंपनीज, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, इन सभी को विद इन 5 days एफिडेविट फाइल करने को कहा है, और बोला है कि आप एफिडेविट फाइल करके बताइए व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ योर ड्यूज पेमेंट एंड व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस ड्यू पेमेंट एंड व्हाट टाइम you require for finalization of all these dues. Recently, in its petition to Supreme Court, Department of Telecommunication had sought relief via 20 years staggered payment for telecommunication companies due to dues along with the waivers of interest and पेनल्टी। सो टेलीकम्युनिकेशन ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इंटरेस्ट के वेवर और पेनल्टी के लिए भी पटिशन फाइल किया था, जिससे कि जो ड्यूज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हों बाय ऑल दोज टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। हालांकि वोडाफोन का इस पर टेक किया रहा है, वोडाफोन ने क्लियरली ये स्टेट किया था वोडाफोन इज़ नॉट एबल टू फाइल एनी एफिडेविट इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज द अमाउंट ऑफ ड्यूज़ आर सो huge. Even the Vodafone cannot file any sort of bank guarantee because this telecommunication company does not even have the enough money to pay salary to its employee and meet other expenses. So because of this verdict of Supreme Court, Vodafone Idea is the worst affected company in telecommunication, and even there is a dispute in calculation of AGR. Vodafone is saying that the total dues on AGR is 21,533 crore, whereas the Department of Telecommunication is estimating it as over 53,000 crore. So there is a conflict of on due calculation as well. However, company has made a part payments of its due previously. And if we calculate the total AGR linked amount for telecom and non-telecom companies, that is around 5 trillion. If we include all companies like Vodafone, Idea, Airtel, Bharti, Oil India, GAIL, Power Grid Corporation, so the due actually raised up to the level of 5 trillion, and that is a very huge amount. And because of that only, Department of Telecommunication has issued the notice to all non-telecom companies just like Oil India and GAIL. But in this regard, Supreme Court has clearly forbidden the गवर्नमेंट टू आस्क एनी शॉर्ट ऑफ ड्यूज फ्रॉम नॉन टेलीकॉम कंपनीज। तो ये अब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि नॉन टेलीकॉम कंपनीज़ को थोड़ा सा गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली। अदरवाइज़ अगर हम बात करें कितना ड्यूज़ है इन नॉन टेलीकॉम कंपनीज़ पर AGR का 2.7 ट्रिलियन का तो ड्यू अकेले नॉन टेलीकॉम कंपनीज जस्ट लाइक ऑयल इंडिया, गेल और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज़ का है। हालांकि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज आर रेडी टू पे फॉर देयर AGR ड्यूज़। आप देख लेते हैं हु ओज हाउ मच, कौन सी प्राइवेट कंपनी कितना किस पर कितना ड्यू है। भारतीय एयरटेल पे अप्रॉक्सीमेटली 43,000 करोड़ का है, एयरटेल पे 18 का, वोडाफोन पे 58,000 का, आइडिया पे 6,000 का, टाटा टेल पे 16 का और उसके पार्टनर पर 4,000 का। तो टाटा टेलीकम्युनिकेशन जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले की न्यूज़ में कि इट्स गोइंग फॉर रिजोल्यूशन, वेयर एज वोडाफोन एंड आइडिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू पे देयर ड्यूज़।
तो यही 3 जो बड़ी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़, जो कि सुप्रीम कोर्ट के AGR वर्डिक्ट से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई हैं। और कल के सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद से टेलीकॉम स्टॉक जो है वो अंडर प्रेशर आ गया। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया का जो रिसेंटली बिकॉज ऑफ द न्यूज़ ऑफ गूगल जो उसका बढ़ा था स्टॉक, तो गूगल के एक्विजिशन की न्यूज़ की वजह से जो वोडाफोन आइडिया के स्टेक बढ़े थे वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हुए। कल इस न्यूज़ के बाद से वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है वो -13% तक गिर गया। वहीं भारतीय एयरटेल को -2.8% का लॉस हुआ बिकॉज ऑफ द दिस वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड एज वी कैन सी, गेल इज़ द लार्जेस्ट ड्यू कवरेज कंपनी। AGR का जो सबसे ज़्यादा ड्यू किसी पर अगर पेंडिंग है तो वो गेल पर है। गेल के बाद ऑयल इंडिया एंड इसके बाद पावर ग्रिड पर। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। RBI प्रपोजेस 10-year टर्म्स फॉर बैंक प्रमोटर्स CEO। RBI ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स का जो टेन्योर है वो बढ़ा करके 70 ईयर्स एज तक कर दिया है, बट कुछ कंडीशंस के साथ। अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या होल टाइम डायरेक्टर प्रमोटर या मेजॉरिटी शेयर होल्डर है बैंक का, देन ही और शी कैन नॉट कंटिन्यू एज CEO फॉर मोर देन 10 ईयर्स। अगर उसके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स है बैंक में तो वो 10 साल से ज़्यादा CEO या होल टाइम डायरेक्टर की पोजीशन को नहीं ले सकता है। बट इफ़ द CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर इज़ नॉट अ प्रमोटर और नॉट अ मेजर शेयर होल्डर इन द बैंक, देन दैट पर्सन कैन स्टे इन द ऑफिस फॉर 15 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स। तो मैक्सिमम कोई इंडिविजुअल किसी भी बैंक का CEO 15 साल तक बन सकता है या 70 साल की एज तक बन सकता है। बट उसमें भी एक क्लॉज है कि अगर पर्सन का रीअपॉइंटमेंट होना है तो रीअपॉइंटमेंट, एक बार पर्सन CEO की पोस्ट से हट गया या उसका रोटेशन हो गया, तो अगर वही सेम इंडिविजुअल को दोबारा से CEO या होल टाइम डायरेक्टर बनाना है वो उसके टेन्योर के बाद, तब रीअपॉइंटमेंट उसका केवल 3 साल बाद होगा। मीन्स अगर उसने एक बार CEO की पोजीशन छोड़ दी या एक बार WTD किया, उसका टेन्योर ओवर हो गया, अगर आपको सेम पर्सन को रीअपॉइंट करना है तो यू कैन नॉट रीअपॉइंट दैट पर्सन इमीडिएटली, यू हैव टू हैव द गैप ऑफ 3 ईयर्स। और उस 3 साल के ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर इनकम्बेंट का बैंक के साथ किसी भी कैपेसिटी में कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। इट मीन्स CEOs का और होल टाइम डायरेक्टर्स का रीअपॉइंटमेंट तो हो सकता है, मगर 3 साल बाद, और उस 3 साल के ड्यूरेशन में उस इंडिविजुअल इनकम्बेंट का बैंक्स के साथ किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल रिलेशन नहीं होना चाहिए या बैंक में किसी भी तरह का इंटरेस्ट या स्टेक नहीं होना चाहिए। देन ओनली ही और शी कैन बी अपॉइंटेड एंड रीअपॉइंटेड एज अ CEO और द whole time director of any bank. This will not only help in achieving the separation of ownership from the management but also reinforce a culture of professional management. RBI का ये कहना है कि इस तरह के जो provisions हैं उससे ओनरशिप का और मैनेजमेंट का सेपरेशन रहेगा। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, वाई बैंक्स एंड द कमर्शियल एंटिटी वांट्स टू सेपरेट द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, कि भाई क्यों चाहता है कि ओनरशिप सेपरेट रहे और मैनेजमेंट सेपरेट रहे। पब्लिक सेक्टर कंपनीज में ऐसा मैक्सिमम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इस तरह के लॉज रहे, रूल्स रखे जाते हैं जिससे कि जो ओनर होते हैं उनके हाथ में मैनेजमेंट की पोजीशन कम से कम रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी में या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जब हम किसी को बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर फर्म है या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक ओन्ड कंपनी है, इट मीन्स उस पर्टिकुलर कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा है, कॉमन इन्वेस्टर का पैसा लगा है। दैट इज़ नॉट द मनी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट या उसके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका पैसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है। तो अगर वो पब्लिक का पैसा है तो उसका यूटिलाइजेशन, उसका मैनेजमेंट पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में। तो टॉप मैनेजमेंट में जो भी डिसीजन होंगे, फाइनेंशियल डिसीजन चाहे वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन, वो पब्लिक के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या इन्वेस्टर के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को लेकर के होंगे, ना कि किसी इंडिविजुअल या टॉप मैनेजमेंट पर जो इंडिविजुअल इनकम्बेंट बैठा है उसके बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो इसीलिए कई बार ओनरशिप को और मैनेजमेंट को सेपरेट कर दिया था, स्पेशली फाइनेंशियल एंटिटीज़ में। जैसे कि इन्वेस्टर, किसी भी कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं। तो कंपनी में कोई भी डिसीजन होगा उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स और द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो जब किसी पब्लिक कंपनी के तो बहुत सारे ओनर्स हो, क्योंकि पब्लिक में उसके शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो अगर बहुत सारे ओनर हैं तो अगर किसी एक ओनर को
टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन, सीईओ की पोजीशन या होल टाइम डायरेक्टर की पोजीशन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन पर, उसके चेयरमैन की पोजीशन पर बैठा देते हैं, तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर ओनर ऐसे डिसीजन ले जो उसके खुद के बेनिफिट में है या उससे कुछ ग्रुप ऑफ ओनर्स के बेनिफिट में है, वो लार्ज ओनर्स या लार्ज इन्वेस्टर के बेनिफिट में नहीं है। तो जिससे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और इस तरह के इश्यूज जनरेट होते हैं, और पब्लिक का कंपनीज में या बिजनेस में इंडिया ट्रस्ट कम होता है। और अगर ये कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम आएगा, जिससे कि फिर कैपिटल फॉर्मेशन और आधे फाइनेंस को रेज करने में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अगर आपको चिट फंड कंपनी का इशू पता हो, जब कंपनीज थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के भाग जाती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं करंट बिजनेस सिनेरियो, तो आपको सहारा का केस पता होगा। इसीलिए बहुत सारे प्रोविजंस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल में, ऐसे प्रोविजंस हैं कि ओनरशिप और टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन को सेपरेट रखा जाता, ताकि पब्लिक या इन्वेस्टर के बेस्ट इंटरेस्ट में काम हो सके। कोई भी कोविटेड एक्शन ऐसा ना लिया जाए जैसे कि फिर हमें सत्यम, आदर्श मेहता, यस बैंक जैसे केसेस देखने को मिले। और दूसरे जो रीज़न होता है टू इंड्यूस द प्रोफेशनलिज्म, हो सकता है जो कंपनी के रियल ओनर हों या जो पब्लिक है, जो इन्वेस्टर्स हों, उनको कंपनी चलाने की बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नॉलेज ना हो। इसीलिए मैनेजरियल पोजीशंस पर ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे एक्सपीरियंस इंडिविजुअल या इनकम्बेंट्स को हायर किया था जो कि कंपनी को प्रोफेशनली मैनेज कर सकें रादर देन managing it as a family business. The central bank said if any such rule was made on the basis of the paper, the CEO WTD who has completed such 10 or 15 years in the bank would have 2 years until the expiry of the tenure, whichever of two affords a person a longer time frame to identify and appoint a successor. और सक्सेसर अपॉइंट करने के लिए भी 2 साल का टाइम उनको दिया जाएगा। कोई सीईओ अगर रिटायर होने वाला तो उसके बाद अपने सक्सेसर को भी अपॉइंट कर सकता है या उसको भी नॉमिनेट करता है, जिसमें जो फिर आरबीआई के मीटिंग्स या जो कमेटी है उसके पास उसका नाम जाता है, देन आरबीआई रीअपॉइंट करता है उसको। करंट सीईओ होता है वो कुछ नाम या कुछ सक्सेसर का कुछ 1-2 सक्सेसर के नाम देकर जाता है कि दी सक्सेसर कुड बी अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सीईओ आफ्टर द एंड और एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टेन्योर। फिर आरबीआई में उसका इवैल्यूएशन होता है अंडर वन कमेटी, देन आरबीआई विल डिसाइड कि उस पर्टिकुलर नॉमिनी को सीईओ अपॉइंट करना है उस बैंक का कि नहीं करना है। दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, उसको हमने नहीं यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे सक्सेसर का अपॉइंटमेंट होता है, क्या क्या क्लॉज होते हैं, आरबीआई क्या क्या डिस्कस करती है, क्या क्या देखती है, क्या क्या मेरिट चेक करती है, वो अदर टॉपिक है। तो अगर आपको याद हो तो टाइम टू टाइम आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर लेती रहती है बैंक्स में कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं जनरल नॉलेज से तो आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष। ये इम्यूनाइजेशन वाला इंद्रधनुष नहीं है, बैंकिंग सेक्टर वाला इंद्रधनुष। आज का आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि मिशन इंद्रधनुष क्या था, और इसमें बेसिक जो 7, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं वैसे ही इस मिशन इंद्रधनुष बैंक्स के लिए आया गया था। इसमें 7 पॉइंट्स थे और उन 7 पॉइंट्स का एक इवेंचुअल पर्पस यही था कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कॉरपोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। तो इसी तरह टाइम टू टाइम आरबीआई बहुत सारी कमिटीज़ फॉर्म करता रहता है, बहुत सारे ऑर्डिनेंस इशू करता रहता है, रूल्स रेगुलेशन इशू करते रहता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द बेस्ट प्रैक्टिस विद इन द बैंक सो दैट बैंक्स कैन बी एफिशिएंटली एंड ट्रांसपेरेंटली वर्क विद इन द पब्लिक डोमेन। तो एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर की रिटायरमेंट एज 70 कर दी गई है। बोर्ड मीट शुड हैव वेल डॉक्यूमेंटेड मिनट्स। जो बोर्ड जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स होंगी उनके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होंगे वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए और हर मेंबर को वो डेसिमिनेट होने चाहिए। आरबीआई विल हैव टू बी सेटिस्फाइड दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर इज रियल। और जितने भी डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट होंगे उसमें बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो शो केस करें कि जो भी डायरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मीन्स उन सारे डायरेक्टर्स का उस पर्टिकुलर कॉमर्शियल बैंक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, नाइदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट नॉर ऑपरेशनल इंटरेस्ट। बोर्ड मस्ट एंश्योर नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन सैंक्शनिंग ऑफ लोन। लोन सैंक्शनिंग में भी कोई
कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कई बार अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो होता क्या है, टॉप मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़े बड़े जो लोन सेंक्शन करते हैं वो लोन उन्हीं लोगों को सेंक्शन करते हैं जो कि उनके रिलेटिव होते हैं या जो कि उनके किसी रिलेटिव को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बेनिफिट करें, जैसा कि आपने ICICI बैंक के केस में सुना होगा, जहाँ पर एक टॉप ऑफिशियल ने बहुत सारा लोन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सेंक्शन किया जिसने उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट उसके बेटे को दिया था। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री से थोड़ा सा अवेयर हैं तो आपको पता होगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा करप्ट पॉलिसीज या करप्ट प्रैक्टिसेस चलती हैं। स्पेशली जब बड़ी बड़ी कंपनीज को बड़े बड़े लोन इशू करने होते हैं तो पॉलिटिकल डोमिनेंस भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और RBI कंटिन्यूसली मेजर लेती रहती है कि इस तरह का पॉलिटिकल डोमिनेंस या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू ना आए जब लोन सेंक्शन होते हैं। हालांकि कितना ये फ्रूटफुल हो रहा है ग्राउंड लेवल पे वो अदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, उसको भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। चेयरमैन कैन नॉट हैड द रेम्यूनरेशन कमेटी, और जो बैंक का चेयरमैन होगा वो रेम्यूनरेशन कमेटी को हेड नहीं कर सकता है। तो CEO की रिटायरमेंट एज 70 साल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंस होने चाहिए, चेयरमैन रेम्यूनरेशन कमेटी का हेड नहीं हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लोन सैंक्शनिंग में नहीं होना चाहिए। इस तरह के प्रोविजंस ने RBI दोबारा से ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने, बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको याद हो, अगर आप थोड़ा सा लिंक कर पा रहे हो तो इसी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से, दिस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाइल सैंक्शनिंग ऑफ लोन आर few issues, because of that NPAs of banks is currently increasing। इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से जो बैंक्स का NPA होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। होता कैसा है, जब लोन सेंक्शनिंग के लिए इंडिविजुअल्स जाते हैं तो वो ऐसे बैंक मैनेजर के पास जाएंगे जिससे या तो उनकी जान पहचान है या उनका कोई लेना देना है, और उस बैंक मैनेजर से बोलते हैं कि हमें पर्टिकुलर से 10 लाख का आप लोन इशू कर दीजिए। उस बैंक मैनेजर ने देखा अब लोन इशू करने में कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्लॉज होते हैं जो बैंक मैनेजर्स को फॉलो करने होते हैं। होता क्या है, बैंक मैनेजर उन सारे क्लॉज को ओवरकम कर देता है और सबको बोलता है फॉलोड, और वो 10 लाख का जो लोन है वो इन्वेस्टर को, इंडिविजुअल को इशू कर देता है विदाउट इवन प्रॉपरली जजिंग देयर क्रेडिट वर्दीनेस। और जब वो लोन सेंक्शन हो जाता है तो उसका कुछ कमीशन, कुछ कट उस पर्टिकुलर बैंक मैनेजर के घर पहुंच जाता है या उसको भी दे दिया था। तो इस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस होती। बैंक मैनेजर जानता है कि वो जो इशू कर रहा है, जो लोन दे रहा है वो NPA बन जाएगा, बट चूंकि उसका अपना कट, उसका अपना कमीशन होता है उसमें, इसलिए वो इंटेंशनली इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस को इग्नोर करते हुए लोन इशू करता है। तो इसी सारी रीजंस की वजह से बैंक्स में, इन सब ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से बैंक्स में NPAs जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आपको याद हो नीरव मोदी का केस, तो उसमें भी बहुत सारे बैंक्स ऑफिशियल इन्वॉल्व थे इसी तरह के इश्यूज़ में। तो RBI ने जो रिसेंट मेजर लिए हैं, इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव हो। RBI ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो आस्क्ड द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ मॉनिटरिंग बाय मीन्स ऑफ सोशल मीडिया एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन सोली ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय रेटेड एजेंसीज और रेटेड एंटिटीज़। जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं उनको RBI ने कहा है कि आप सोशल मीडिया और कॉर्पोरेट फाइलिंग की इन्फॉर्मेशन को भी अपनी रेटिंग प्रोविजंस में यूज़ करिए कि आप सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर पर डिपेंड हो रहे हैं, दैट इज़ रेटिंग एजेंसीज। तो अगर आप अपना इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रेटिंग है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो, रियल सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करे, तो सोशल मीडिया और कॉर्पोरेट फाइलिंग जैसी इंफॉर्मेशन को भी आपको अपने रेटिंग प्रोसीजर में इंक्लूड करना चाहिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 given on page number 1. First infrastructure investment trust, a government entity set for launch. Indian government is going to launch the first infrastructure investment trust from the government entity, and that is likely to take off by this month through National Highway Authority of India. National Highway Authority of India ने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है SEBI में फॉर फॉर्मिंग फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड जो ट्रस्ट फॉर्म हो रहा है ये कैसे काम करेगा और इसका क्या यूज़ है, क्यों गवर्नमेंट इसको फॉर्म कर रही है। The NHAI plans to offer 19 projects worth rupees 35,000 crore under this trust, and of which 2/3 project worth rupees 5,000 to 6,000 crore are expected to be taken up first.
और जितने भी प्रोजेक्ट इशू होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के तहत, वो दो ही मॉडल पर काम करेंगे, वन कंस्ट्रक्टेड ऑन गवर्नमेंट फंडेड और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मोड। अगर आपको पता हो तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब दिए जाते हैं तो उसमें कई तरह के मॉडल्स होते हैं, बॉट मॉडल्स होता है, ट्रिपल पी मॉडल होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि केवल यही दो मॉडल यूज होंगे फॉर सैंक्शनिंग द प्रोजेक्ट्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। अब क्या होगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में? इसमें असेट्स आर प्लेस्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट वेयर इन्वेस्टर्स पुट इन मनी, and those investors who put their money into this infrastructure investment trust will be getting dividend from the income of these assets. So the union government is encouraging the companies and the departments to monetize their assets for fundraising by using this infrastructure trust. Beside NHAI, government-owned Power Grid Corporation is also planning to monetize its transmission project via infrastructure investment fund, even though अभी तक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है सेबी में। बट जो NHAI का ये पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल होगा जिसके तहत NHAI अपने फंड को अपना फंड रेजिंग करेगी और अपने असेट्स को मोनेटाइज करेगी। अभी तक जो NHAI था वो किस मॉडल पे ऑपरेट कर रही थी? अभी तक NHAI अपने टोल ऑपरेट TOT मॉडल पर ऑपरेट कर रही थी। TOT मॉडल मीन्स पहले जो प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, वो टोल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, उसको कुछ टाइम तक ऑपरेट करते हैं, उससे अपना रिवेन्यू जनरेट करते हैं। जब उनका रिवेन्यू, उनका प्रॉफिट मार्जिन पूरा हो जाता है एज पर द एग्रीमेंट, देन दे ट्रांसफर दैट प्रोजेक्ट टू गवर्नमेंट, तो इसको बोलते हैं TOT मॉडल। बट अब NHAI ने मूव किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल पर। अ जॉइंट वेंचर ऑफ two companies has taken the TOT project first time in 2018 after paying the upfront fee of 9,680 crores for 9 national highway projects। तो TOT मॉडल के तहत सबसे पहले दो कंपनीज के जॉइंट वेंचर ने ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिया था जिसके अंडर उन्होंने 9 नेशनल हाईवेज को बनाया था। बट अब जब प्रोजेक्ट इशू किए जाएंगे वो इशू किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तहत। और रिसेंटली गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो इस पर्टिकुलर ट्रस्ट के तहत 19 प्रोजेक्ट्स को इशू करने वाले, जिसमें से 2 से 3 प्रोजेक्ट जो हैं उनकी कॉस्ट 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए तक होगी। और जो गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च किया है उसमें किस किस तरह की अंडरटेकिंग्स को इनवाइट किया है कि वो अपना असेट, अपना मनी उसमें इन्वेस्ट करें, पुट करें, जिससे कि गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट को उस पर्टिकुलर ट्रस्ट से फाइनेंस कर पाए। तो पब्लिक में इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, ओरिएंटल इंफ्रा ट्रस्ट, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इंडिया इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, टावर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, तो इन सबको इन्वाइट किया गया है कि वो आए और NHAI के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अपना इन्वेस्टमेंट लगाएं, जिससे कि उस असेट से जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसको एज अ डिविडेंड उनको इशू किया जाएगा। सो इन दिस मॉडल 35,000 करोड़ का 90 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इशू करेगी NHAI। 2 से 3 प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंटली उनकी 2 से 3 प्रोजेक्ट उनको रिसेंटली लॉन्च करना है, उनका जो वर्थ है वो 5,000 से 6,000 करोड़ का है। दिसंबर 19 में यूनियन कैबिनेट ने इसके लिए परमिशन दी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का फॉर्मेशन हो सके। हालांकि इस बात की भी परमिशन है कि आप इस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से छोटे TOT पैकेज के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी फाइनेंस कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 11 इंडाइसेस स्टम्बल ओवर फियर ऑफ अ सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन। अगर आपको याद हो तो कल हमने डिस्कस किया था, OECD ने प्रेडिक्ट किया है कि अगर इंडिया में दोबारा से इन्फेक्शन की वेव आती है तो इंडिया की GDP का कॉन्ट्रैक्शन 7.3% तक जा सकता है। तो इसी सारे प्रोजेक्शंस को ले करके इंडिया में कल बेंचमार्क जो इंडाइसेस हैं वो फॉल कर गया। इवन इंडिया में नहीं, ग्लोबल मार्केट के भी जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो फॉल किए हैं बिकॉज ऑफ द वरीज ओवर ऑफ सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक, जिसमें निफ्टी को 2.1% का लॉस हुआ है, सेंसेक्स को 2.07% का लॉस हुआ है कल। और ये कहा जा रहा है कि ये अब तक का बिगेस्ट सिंगल डे लॉस है सिंस मई 18, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि मई 18 के बाद से इकोनॉमी ओपन होने से इन्वेस्टर्स में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स
डेवलप हुए थे, जिसके बाद से जितने भी बेंचमार्क इंडाइसेस हैं और स्टॉक प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली पॉजिटिवली बढ़ रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। बट 18 मई के बाद से कल का जो फॉल हुआ वो सिंगल डे का बिगेस्ट फॉल है, और वो फॉल किस लिए हुआ? बिकॉज ऑफ द रूमर ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन. The US Fed assessment for a long-lasting damage to US economy also dented the risk appetite. US Fed का जो assessment आया था कि इस पर्टिकुलर पैंडमिक से US इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, जिसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स में निगेटिव सेंटिमेंट्स आए और जितने भी ग्लोबल इंडाइसेस थी उन्होंने निगेटिवली रिएक्ट किया. मोस्ट ग्लोबल इक्विटी टम्बल्ड नियरली 2% with the US future indicating another day of losses on Wall Street. इवन यूएस के तो कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि दे आर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ रेजिंग द रेट्स एंड दे आर मोर कंसर्न अबाउट द जॉब मार्केट बिकॉज द जॉब मार्केट माइट स्ट्रगल टू रिकवर वेरी स्लोली. US Fed के as per the US Fed statement, V-shaped recovery is not going to be there. It is not at all possible. US Fed chair said or suggested that pandemic could inflict a long-lasting damage on US economy. And because of all those information, there was a sell-off globally, not in Indian indices but also in global indices. If the global economy takes long to recover, then no one is going to be benefited as per the Andrew Holland. और अगर हम बात करें कि टॉप निफ्टी गेनर्स और लूजर्स कौन थे, तो हम देख सकते हैं कल जो हमारे स्टॉक प्राइसेस फॉल किए उसमें जो टॉप गेनर्स थे उसमें इंडसइंड बैंक, नेस्ले और हीरो मोटोकॉर्प, जबकि जो लूजर थे उसमें भारतीय इंफ्राटेल, जी एंटरटेनमेंट एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एंड इफ यू वांट टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स, तो वी कैन ईजिली सी आफ्टर जून 11 द स्टॉक प्राइसेस फॉल द वे बिलो 34,247.1 के प्राइसेस स्टार्ट हुए एंड दैट क्लोज अप एट 33,538.4. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. ट्रैवल फर्म्स में मेक हेल्थ सर्टिफिकेट मस्ट. So as per the new guidelines and safety procedure, hotel and travel firms are likely to make health certificate compulsory for check-in and check-out process. Even as states issues conflicting dictates on whether medical certificates are needed for travel or tour companies, but on the other hand, travel and tour companies are devising their own protocols on resuming their business and to ensure the safety. So as per their new protocols, travel firms, hotels may require health certificates for availing their services. आप देख लेते हैं दूसरी न्यूज़. FPIs to pick $300 million stake in Yes Bank. A group of US-based foreign portfolio investment is looking to pick up stake worth rupees $300 billion in Yes Bank. तो Yes Bank की जो फोर्थ कमिंग शेयर सेल आ रही है उसमें यूएस बेस्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करने वाले हैं. कितना अमाउंट? $300 मिलियन का अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं. और वो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? स्ट्रक्चर्ड और अनस्पॉन्सर्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स के रूट के थ्रू होगा. द FPIs आर इन एडवांस टॉक विद एन इंडियन बैंक्स फॉर दिस एक्ट एज अ कस्टोडियन. तो जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं दे आर इन कंटिन्यूअस टॉक विद येस बैंक्स. सो इन फ्यूचर वी विल सी द शेयर सेल ऑफ येस बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट. अगर आपको याद हो तो अक्टूबर लास्ट ईयर में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ डिटेल फ्रेमवर्क इशू किए थे जिसमें जितने भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके लिए फ्रेमवर्क डिवाइस किया गया था कि वो कैसे डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर सकती हैं और कैसे फॉरेन मार्केट से फ़ंड को रेस कर सकती हैं. अगर हम बात करें स्पॉन्सर्ड ADR, तो स्पॉन्सर्ड ADR क्या होते हैं? ADR दो तरह के हो सकते हैं, अनस्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड. स्पॉन्सर्ड ADR क्या होते हैं? स्पॉन्सर्ड ADR आर दोज दैट अ बैंक इशू on behalf of a foreign company whose equity is the underlying asset. तो इसके पीछे स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं जो कि एक्चुअली ADR इशू करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द फॉरेन कंपनी, तो उनको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड ADR. ADR आप सबको पता होगा को अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स बोलते हैं. इट्स वन ऑफ द प्राइम रूट बाय विच एनी कंपनी कैन रेज फंड फ्रॉम द फॉरेन मार्केट. कभी डिटेल में मैं इस पर एक वीडियो लेक्चर आपके लिए बना दूंगी. आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़. इन अ फर्स्ट BSE सेट टू डिलीवर इंडिया स्टैंडर्ड गोल्ड सिल्वर. The Bombay Stock Exchange has introduced a first of its kind India standard gold and silver delivery under the
फ्यूचर एंड ऑप्शन सिस्टम ऑफ बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप गोल्ड और सिल्वर की डिलीवरी के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस का प्रोविजन लाने जा रहे हैं अंडर बुलियन कॉन्ट्रैक्ट। दिस मूव कुड पोटेंशियली एलिवेट द इंडिया स्टेटस एज अ प्राइस सेटर फॉर दीज मेटल्स। बीएसई के इस मूव से इंडिया का जो स्टेटस है वो प्राइस सेटर की तरह मूव करेगा इन मेटल्स पे, क्योंकि अभी तक इंडिया का जो स्टेटस है वो प्राइस सेटर का नहीं है। ऐसा कहता है इंडिया इज अ प्राइस फॉलोअर, इंडिया प्राइस सेट नहीं करता इन सारे मेटल का। तो अगर बीएसई इस तरह के फ्यूचर और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ला रहा है तो इंडिया की जो पोजीशन है वो मेटल प्राइस सेटर के फॉर्म में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। टू फैसिलिटेट द इंडिया स्टैंडर्ड डिलीवरी, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दैट इज BIS हैड इन जनवरी नोटिफाइड स्टैंडर्ड फॉर प्योरिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अभी तक जितने भी एक्सचेंज ऑफर हो रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के, उन सारे का जो एफिलिएशन होता है अगर हम बोलें या अप्रूवल होता है क्वालिटी का, तो वो कहाँ से होता है? लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, इसको LBMA भी बोलते हैं। और LBMA के अकॉर्डिंग इंडिया की केवल एक ही रिफाइनरी क्वालिफाई होती है गोल्ड को सप्लाई करने के लिए, जिसके कारण इंडिया की जो पोजीशन है वो प्राइस फॉलोअर या प्राइस टेकर की पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ मेटल। और इन स्पाइट ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर, इंडिया गोल्ड का बहुत बड़ा कंज्यूमर। अगर हम बात करें तो हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हम गोल्ड को इंपोर्ट करने में जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में गोल्ड को बहुत सारी चीज़ों से लिंक किया जाता है। तो BSE का जो ये मूव है ये इंडिया की पोजिशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा एज अ प्राइस सेटर। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, RBI प्रपोजेस 10-year टर्म्स फॉर बैंक प्रमोटर्स CEO। तो आप इसमें इंद्रधनुष को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स एंड रेगुलेशन जो RBI टाइम टू टाइम लाती रहती है ट्रांसपेरेंसी को इशू करने के लिए बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट न्यूज़ है। आज की कंसेप्ट ऑफ द डे अगर मैं बात करूँ कौन से कंसेप्ट ऑफ द डे हैं, तो digital NBFCs, mission Indradhanush for public sector banks, different forms and model of management contract and ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीट्स। तो ये 4 कंसेप्ट हैं आज के न्यूज़ से जो बैंकिंग स्टूडेंट्स या UPSC के स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ़ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।